अच्छा, लैब नंबर 8 जो है इट्स अबाउट द फंक्शन। हमारा एक लास्ट स्लाइड्स रह गई थी उसकी, जो मैं कॉल बाय रेफरेंस वाला जो हमारा प्रोग्राम था, स्वैपिंग वाला जो था ना, तो वो बेसिकली हमारे इस लैब का हिस्सा है। तो इस लैब में वो प्रोग्राम हम लोग कर लेंगे, तो इसमें से आपका जो थ्योरी का वो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ताकि कल जो है एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है लाइक लैब नंबर 8, इट्स कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स। ओके, so in the part 1 we are going to develop a program in which you have to do write C++ non-return functions. Make sure you have to focus on these words whenever you get some like the assignments, quizzes, or in the exams. Okay, so make sure you have to read first the complete question. So the first question or the objective of this particular lab, one of the objective is write a C++ non-returning function program that prints pulse rate output. Okay, so you have to make a function which is not non-return functions. Non-return function means the output comes in the function definition. So the function definition में इसका output आना चाहिए। इसके बाद फिर लिखा हुआ है कि write a C++ program like return functions program that prints blood pressure output. Okay, so in this particular program you have to make a return function. It means it is returning the value towards the main program. Okay, so we are going to develop these two separate programs, so we understand that what is the difference between the return and non-return functions. So here is the basic definition about the functions and its return and non-return types. So I'm just directly towards going towards the code. I will type the complete code by myself, and then you can see if you have any question and query. So in this particular sentence, I'm asking again and again the blood pressure. Okay, uh, here is some particular readings. It's about the pulse rate. Okay, the pulse rate is this one. 60, like when you check the palpation of your like the veins from sort of from the arteries, it's like the 72 is the most ideal one. 72 जो होती है ideal होती है. There will be the chances of plus minus 5 plus minus 10. So it's up to you. You can whatever the you can adjust things. So let's suppose if the pulse rate is between 68 to 74, we are considering normal. If it is less than 68, it is low. Otherwise, it will be high. So this is the only option that has been exist. Here, because we have to write a non-return function, so we are going to use the word void and give the name like whatever name of the function which is called the pulse. Okay, you can declare the function prototype here. There is only one value is input, like you can write whatever the pulse rate. सही ना, तो pulse rate जो भी हो वो आपने इसमें enter कर देना है. So only one parameter has been required in this particular program. So by this way, you can just take the input from the user, call the function, and you got the output. And if you have more than one input, so you can ask again and again and again. So it will give you the output from any one of them. Then the second program is about the like the blood pressure. Okay, so the normal blood pressure is 120 by 80. So if the reading is above than this particular unit, millimeter of mercury, then it is considered to be hypertension or high blood pressure. Otherwise, it is considered to be a low blood pressure. So there are the two units that we have required: the high side, which is called the high systolic, and the lower side, which is called the diastolic. So we take the two inputs. Therefore, when we are going to define the function prototype, definitely there is no any chances to take the reading as in the points like 105 or 120.5. So that's why we are using the int. So we are taking the fixed values, non decimal values. So first value is integer, second value is integer, and we need to create a return type function. So we have required the int. Okay. Again, we are going to take input in the main function, and the value has been calculated and returned back to us in function definition. So how the value has been calculating, this is one of the way to write this particular program. Okay,
So in this particular program, what I have to do, like I put the if conditions that if the high side is 120 and the low side is 80, so you can return the value 1. Okay. So if otherwise, if the higher side is high and the lower side is higher than the like average value, so you can return 2. Or when the blood pressure, sorry, the high and low blood pressure is lower side, like high, whatever the value of high is less than 120 and the diastolic pressure is less than 80, so you can return 2. Otherwise, if the value of systolic blood pressure is more than 120 and diastolic pressure is more than 80, you can return 3. Otherwise, we are going to return 4. So these are the 4 possibilities that you are going to return in the main program. So here, what is going on when the value has been goes back towards the from the function has been called, it return either 1, 2, 3, and 4. Okay. So in case of return 1, it says that the normal blood pressure. If it is return 2, it says low blood pressure. If return 3, it means the high blood pressure. Otherwise, it is considered to be the abnormal blood pressure. The abnormal blood pressure, in which sometimes the high side, like the systolic side, is okay, but the lower diastolic side is too much low. So this is called some the abnormality in the blood pressures. So this is the like the lab of our part 1 in the lab number 8A. So let's make the program by here in the compiler. Let me copy the objective of the lab, so it will be in front of us, so it will be easier to remember the program. ऐसे तो ये दोनों प्रोग्राम अलग अलग विंडोज पे हम क्रिएट करेंगे ताकि it will be looks clearly at the moment. Otherwise, we can combine these two program into a single program as well. अच्छा, लेकिन इस लैब में दोनों को अलग अलग परफॉर्म करना है. अभी हम जो है फर्स्ट वाला परफॉर्म कर रहे हैं, विच इज नॉन रिटर्न फंक्शन that prints pulse rate output. Okay. So when you create the main body, here you're going to write the function prototype. Okay, so this is the non-return function, so you always use the word void. Give any name, pulse rate. Let's suppose I'm going to give here PR. सही ना, pulse rate PR मैंने ले लिया. नाम जो होगा फंक्शन का ऐसा होना चाहिए कि जो उससे मैच कर रहा हो, जो जो आपने टास्क परफॉर्म करना है. ठीक है ना, यानी जो आपको लैब परफॉर्म करनी है उससे रिलेटेड फंक्शन का नाम होना चाहिए. ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये है कि इट विल बी ईजियर इफ़ यू are creating multiple functions, so it is so called, it will be easier for understand कि हाँ यार ये function जो मैं create कर रहा हूँ ये इस function के लिए है. Then I am going to take input, a single input, क्या कहते हैं, जो pulse rate होता है एक ही reading होती है. Going to this let's suppose I am going to take R ले लेता हूँ variable. See ना, R variable ले लिया. So by this way my prototype is complete. Now I'm going to declare the variable inside. I'm taking R again. It doesn't matter कि आप कौन सा variable लेना चाह रहे हो. यहाँ पे फिर एक constant statement आ जाएगी. Please enter
pulse rate C in R. उसके बाद once you have get the data from the user, so just simple you have to call the function. सही ना, function को call करना है. The function जब call करते हैं तो there will be no data type has been just write down the function name, uh, brackets open and the value. So by this way the value has been going towards the function definition. So this is this is complete. Like ये मेरा main जो है वो complete हो गया. उसके बाद as it is जैसे मैंने function prototype define किया था वो मैं as it is जो है वो नीचे टाइप कर दूंगा except the semicolon. ये जो फंक्शन डेफिनेशन होती है उसमें सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं होता. सही ना, सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं होता. नाउ we already studied the decisions like the if else condition, the switch case. It's up to you, you can use the switch case or the if else conditions. So here whenever you have to do some range work, like आपको एक दिया होता है कितनी रेंज तक का ये आउटपुट आ रहा है. So I think the if else condition is quite easier. सही ना, तो इस वजह से मैं if else को ही यूज कर रहा हूँ कि if r और अगर मुझे पता है कि रेंज जो है एग्जैक्ट जो है 72 है. सही ना, लेकिन लेट सपोज के रीडिंग को जिस तरह से दे देते हैं कि जी पल्स रेट इज लेस देन 75 कर देते हैं. लेट सपोज इट डजंट मैटर कि अगर यूनिट जो है कुछ ज़्यादा प्लस माइनस हो जाए. लाइक अगर इवन के 72 है ना, 72 में +5 कर देता हूँ. सही ना, +5 एंड इट मस्ट बी एंड ऑपरेटर नॉट और ऑपरेटर. उसके बाद फिर r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 60 लाइक 72 -5. इस तरह से मैंने कर दिया. ठीक है ना. सो यू कैन गिव द आउटपुट इज नॉर्मल pulse rate. Then the second condition is if the pulse rate is less than how much the difference is less than में क्या होगा. नो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा ना और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा. 67 तक तो हमने वो उसमें लिया है ना. तो हाँ 67. तो अगर 67 हो तो इसका मतलब है वो नॉर्मल है. लेकिन 67 से कम है तो इसका मतलब है इट कम्स अ लो ब्लड प्रेशर, सॉरी लो पल्स रेट. else whenever we use else there is no need of condition. यानी कंडीशन की हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि if pulse rate is higher than 77 जा रहा है. थी ना, हाई 77 पे जा रहा है तो हमें हाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि else के साथ कभी भी there will be no any conditions. So you just write down because there is only 3 options exist, either normal, either high or either low. सही है ना. So normal और लो की मैंने कंडीशंस खुद लिख दी हैं तो इस वजह से जो हाई की कंडीशन है वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है. So that's it. This is a complete program, the non-return function that give you the pulse rate. सही ना. Let me check, compile the program और उसको चेक करते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा. It's lab 8A. Okay. Let me write the
नॉर्मल प्लस पल्स रेट यानी मीन्स कि जब आप इनपुट दे रहे हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए इसका नॉर्मल आउटपुट आना चाहिए, सही ना। इसका नॉर्मल आउटपुट नहीं आ रहा, सही ना। नॉर्मल आउटपुट ना आने की वजह अब हम चेक करते हैं कि क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि आपने दिया 72, सही ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 72 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू क्या कहते हैं 67, वो क्या कहते हैं ये इसको वो लिख लेते हैं, उसमें 67 लिख देते हैं और ये 77 लिख देते हैं इस तरह से ना, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो अब यहाँ पे आ रहा है 72 इज लेस देन इक्वल टू 67, कंडीशन जो है वो यहीं पे फॉल्स हो गई, सही ना। कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो गई तो इसका मतलब ये था कि हम लोगों ने जो पहले साइन लगाए थे वो बिल्कुल सही लगाए थे, यानी शुरू में हमने प्लस लगाया था और इधर माइनस लगाया था, सही ना। तो इसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है ये गलत हो गया। सो अगर ये गलत हो गया तो इसका मतलब है ये भी सेकंड ऑप्शन भी गलत हो रहा है, 72 इज लेस देन इक्वल टू 67, सो बाय डिफॉल्ट वो हाई ब्लड प्रेशर पे जा रहा है। इस तरह से यानी मीन्स कि आपके अपने प्रोग्राम को चेक करना ज़रूरी होता है, सही ना। तो मेक श्योर कि ये या तो रीडिंग को उधर कर लें या फिर सिंपल साइन को चेंज कर लें। इस तरह की चीज़ें मैं खुद करा रहा हूँ जान के कि आपको उसकी प्रैक्टिस हो कि कोई जो आप गलती करते हैं तो उसको कैसे करेक्ट करना है, सही ना। देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स हु ईमेल मी विद अ वेरी लाइक माइनर मिस्टेक, सो यू हैव टू चेक योर आउटपुट, यानी मीन्स के अगर मैंने कुछ गलती की है इसके अंदर तो यू कैन रीड इट, दिस इज अ मिस्टेक सो आई कैन करेक्ट बाय माई सेल्फ, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। So let's again, I'm going to compile this particular program. Whenever you make a program, you have to check all the options, सही ना। अब देखें, now the output is correct, like 72 के ऊपर मेरे पास output correct आ रहा है। Let me compile, run again and put some different value which is under the range, like the 75. 75 लिखा है तो 75 is also come in a normal pulse rate. Let me check the other values. For example, if I'm going to put the value which is less than 67, so you know, run the program and now I'm going to write 63. So in 63 the pulse rate is low. Now I'm going to write the high, like 77 तक ना 78 करता हूँ तो is high, सही ना, high output आ रहा है। So now my program is 100% is correct. So by this way you are going to check your complete program. So ये ना तो इस तरह से अपने प्रोग्राम को आप टेस्ट कर सकते हैं। Any question regarding this particular lab task? वो lab ओके। फिर इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, लाइक अच्छा फिर वही कि अगर आपने मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स प्रोग्राम जो है उसमें इनपुट लेना है यूजर से, सो यू कैन जस्ट कॉपी दिस 3 लाइन्स एंड पेस्ट हियर। सो बाय दिस वे यू कैन लाइक आप लोग सिर्फ एक या दो दफ़ा लिख लें लैब, उसमें मैंने ऑलरेडी 3-4 दफ़ा लिखा हुआ है लैब के अंदर। सो इट्स अप टू यू। सो अगर आपने एक से ज़्यादा इनपुट लेने हैं सो यू कैन डू लाइक दिस, सही ना। और इसके अलावा इसमें आप लूप भी लगा सकते हैं कि दोबारा से अगर आपने इनपुट लेना हो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 टाइम्स इनपुट ले रहा हूँ, लाइक आई हैव टेकन द रीडिंग, लो पल्स रेट आ गया, सही ना। फिर अब ये सेकंड टाइम इनपुट ले रहा है, क्योंकि मैंने एंड लाइन नहीं लगाया, एंडल मैंने यूज़ नहीं किया यहाँ पे, सही ना। जब इनपुट लेने के बाद यहाँ पे तो ये सेम लाइन पे इनपुट मांग रहा है मुझसे। ये मैंने इनपुट दे दिया तो ये दो आपको आउटपुट जो है उसने प्रोड्यूस कर दिए। इस तरह से मीन्स के ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पे /n लगा लें या फिर एंडल शुरू में लिख दें, सही ना। तो बोथ आर द करेक्ट वेज। अच्छा फिर लेट मी क्रिएट द सेकंड प्रोग्राम विच इज दिस वन।
आमतौर पे जो रिटर्न फंक्शंस होते हैं उनका कोड जो होता है वो ज़रा लेंदियर होता है, सही ना, यानी मीन्स कि उसमें रिटर्न करके फिर वैल्यूज़ वापस आ रही होती हैं। आईओ स्क्रीन यूजिंग नेम स्पेस std int main curly bracket open return 0. So now we are going to make a program which is return the output of the pulse blood pressure. So you know blood pressure क्या होता है कि आपकी पल्पेशन होती है बॉडी में. We are going to study these topics in detail in the biomedical instrumentation course in 4th semester. Okay, so just you have to know about the blood pressure is कि जो आपका जो हार्ट है, कार्डियक हार्ट, so it is pumping या like it is like कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है. सो once the heart has been contract, the blood is circulating very in speedy way. स्पीड वे में वो सर्कुलेट करता है टूवर्ड्स द आर्टरीज, सही ना. सो उस वक्त जो आर्टरी में जो प्रेशर होता है उसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी के अंदर हम लोग मेजर करते हैं, सही है. सो वी आर गोइंग टू नो दैट व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ द ब्लड प्रेशर दैट हैज बीन फ्लोइंग इन योर आर्टरीज. सो दैट प्रेशर इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर और हाई प्रेशर, सही ना. हाई प्रेशर क्योंकि जब कोई चीज़ पंप होती है, कोई मोटर चल रही है तो पानी को फेंक रही है स्पीड में, तो दैट्स द हाईएस्ट प्रेशर. और जब हार्ट जो होता है रिलैक्स हो रहा होता है, यानी मीन्स के नॉर्मल पॉइंट पे अपने वापस आ रहा होता है, तो उस टाइम आर्टरीज का प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, सही ना, यानी मीन्स के थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, प्रेशर पीछे से कम हो गया. तो दैट्स कॉल्ड द लो प्रेशर. सो देयर इज सम स्टैंडर्ड हैज बीन डेवलप्ड कि कितना हाई तक होना चाहिए, कितना लो तक होना चाहिए. अगर वो हाई बहुत ज़्यादा हाई हो जाए या लो बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो इट्स कॉल्ड सम पार्टिकुलर कार्डियक डिजीज है, सही है ना. तो इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, जस्ट give you the basic definition of the blood pressure. So this time we are going to make a return function. So the most important word is here the return function. So you must see this thing कि return लिखा है, non return लिखा है, सही है. When it is returned then definitely you have to use the data type, और data type भी वो वाला यूज़ करना है कि जिसके अंदर आप जिस पैरामीटर के अंदर आप वैल्यूज इनपुट लेंगे. डेफिनेटली इसके अंदर मैं इंटीजर टाइप वैल्यूज इनपुट लूंगा तो डेफिनेटली इसका आउटपुट भी इंटीजर टाइप ही आएगा, सही है. सो आई राइट ऑन द INT. नेम ऑफ द फंक्शन इज लेट सपोज के BP लिख देता हूँ, विच मीन्स का ब्लड प्रेशर, सही है. और यहाँ पे INT L ले लेता हूँ फॉर लो और INT H ले लेता हूँ फॉर हाई, सही ना. तो इसमें दो वैल्यूज मुझे इनपुट लेनी है. सो दिस दैट आई डिफाइन माई पैरामीटर, सही ना. इंट L, H ही मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, सही ना. और फिर यहाँ पे डेफिनेटली मेरी आएगी स्टेटमेंट की सी आउट एंटर दी लो लिख लें या डायस्टलिक लिख लें, बात एक ही है. लो एंड हाई मैं एक ही स्टेटमेंट में ले रहा हूँ ताकि इनपुट एक साथ ही ले लें ताकि कोड हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाए. एंटर द लो एंड द हाई ब्लड प्रेशर. सी इन पहले हमने लो लिखा है तो उस वजह से L पहले इनपुट लेंगे, देन H इनपुट लेंगे. अच्छा, वंस द इनपुट हैज़ बीन कम अप, और इसके अंदर हमें एक थर्ड वेरिएबल की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि व्हेन the function return the value it will be saved into the another variable. Let's suppose I am going to take r as a result. R is equals to write the name of function which is called BP, functions parameters, the values of the functions. ये हमने फंक्शन कॉल कर लिया. इसके बाद फर्दर यानी मीन्स के जो वाइड फंक्शन होते हैं उसमें फर्दर कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि ऑल द आउटपुट ऑल द कैलकुलेशन इज गोइंग इन द फंक्शन डेफिनेशन. बट हियर the values has been come up and I have to print the values, सही ना. so values तो हमें जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं तो we already know the values, so we need the output की जो values हमने इनपुट दी हैं उसके अगेंस्ट रिजल्ट क्या जनरेट हो रहा है. so if we want to find the result, so we required the if conditions at that moment. यानी मीन्स के पहले if की कंडीशन हमने फंक्शन डेफिनेशन में लिखी थी. अब यहाँ पे जो रीडिंग्स हैं हम यहाँ पे लिखेंगे.
सो अब रीडिंग्स में ये है कि हमने सेट करना है कि एक हाई, हमारे पास क्या क्या से कौन कौन से ऑप्शंस हैं कि इधर अ ब्लड प्रेशर इज हाई, इधर अ ब्लड प्रेशर इज लो, और इधर अ ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, और इधर द ब्लड प्रेशर इज abnormal, सही ना. So we have the four options. So we are going to write here the four options with the help of if conditions के अगर लेट सपोज के 1 आ जाए तो आप यहाँ पे, मैं सिर्फ वो शॉर्ट वे में लिख रहा हूँ, नॉर्मल ब्लड प्रेशर. फिर उसके बाद else if, because only one reading is correct, so we are going to use the else if conditions to see out low blood pressure. Else if see out condition high blood pressure. For else, which is the default, see out कि अगर सारी कंडीशन ऊपर वाली गलत हो जाए तो रिटर्न abnormal. Like this, our main functions values has been completed. तो main function का जो input जो data था वो मेरा तकरीबन complete हो गया. Now I'm going towards the function definition. int bp int low int high. अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि मुझे रिटर्न यूज करना है और मुझे ये चेक करना है कि कहाँ पे मुझे रिटर्न 1 देना चाहिए, कहाँ पे रिटर्न 2 देना चाहिए, कहाँ पे रिटर्न 3 देना चाहिए. तो अगेन वी हैव टू रिक्वायर्ड द इफ कंडीशन. सही ना, इफ कंडीशन हमें रिक्वायर्ड होंगी जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि इफ द लोअर साइड ऑफ ब्लड प्रेशर इज 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसको यूनिट में मेजर किया जाता है, एंड हाई साइड इज 120. सही ना, 120/80 में हो तो ये नॉर्मल है. सही ना. सो द फर्स्ट कंडीशन इज नॉर्मल के लिए क्या है कि हमें 1 रिटर्न करना है. सही ना. सो सिंपली वी आर गोइंग टू रिटर्न 1. एल्स इफ सेकेंड कंडीशन हमने लो के लिए दी है, तो इसका मतलब क्या है कि इफ लोअर साइड is less than 80 and higher side is less than 120, यानी दोनों साइडें उससे जो प्रेशर है वो कम हो, तो क्या करें, रिटर्न 2 कर दे. else if, फिर हमारे पास हम हाई साइड को देख रहे हैं. else if lower side is greater than 80 and higher side is greater than 120. इसके अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं. whenever you can search on the internet, so there are so many much more ranges has been given, so I'm just using the like the most basic ranges. you know, ये बहुत ही simplest range के अंदर मैं काम कर रहा हूँ अभी. so if like at least you have to learn about the return functions, so later we will क्या कहते हैं इसको further exactly modify भी करेंगे इस particular program को. और else like we have already set के 1 2 3 हमने रीडिंग सेट की है. सही ना. सो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी 1 2 3 के अंदर हमने इनपुट लिया है. तो रिटर्न के अंदर एनीथिंग अदर देन क्या कहते हैं 1 2 3, जो आप कुछ भी दे दें तो वो डिफ़ॉल्ट की वैल्यू में चला जाएगा. सही ना. तो जो मैंने लैब में दिखाया था वहाँ पे मैंने 4 लिखा हुआ है. सो 4 इज़ नॉट नेसेसरी, यू कैन राइट इधर 5 इधर 6 वॉट एवर द नंबर, यानी डेफिनेटली वो नंबर जो है वो
एग्जिस्ट ही नहीं करता, या डिफ़ॉल्ट ज़ीरो कर दें यहाँ पे तो भी वो ज़ीरो रिटर्न कर देगा, ठीक ना। यहाँ पे ज़ीरो जो है वो मेन प्रोग्राम को वापस जा रहा है, तो क्योंकि उससे कंफ्यूज ना हो जाए कि मेन में हमने ज़ीरो लिया हुआ है, तो इस वजह से चलें यहाँ पे 4 ही रहने दें। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वॉट एवर यू कैन टेक द वैल्यू अदर देन 1 2 3, सो इट गोज़ टूवर्ड्स द डिफ़ॉल्ट एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू। लेट्स कंपाइल दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड देन एग्जीक्यूट। लैब 8A और उसका ये सेकंड प्रोग्राम है, तो इसे यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ओके, देयर विल बी नो एनी एरर, रन। Let's see all the options. Like first of all, we can check if either the blood pressure is normal or not. Enter the low and the high blood pressure. Let's see कि low में मैंने 80 लिखा और high में 120 लिखा. So the output must be the normal. अगर normal आना चाहिए, normal नहीं आ रहा तो definitely इस code में कोई problem है. Like normal आ गया, it means your program is 100% is correct. सही ना? Let's compile again and check all the आउटपुट्स के तमाम आउटपुट जो हैं इसमें सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं. लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू राइट लोअर साइड इज 75 एंड द हायर साइड इज 110, सो इट गिव मी द लो ब्लड प्रेशर, दैट्स आल्सो ओके, आउटपुट बिल्कुल सही आया. फिर उसके बाद हायर साइड पे चेक कर लेते हैं कि लोअर ब्लड प्रेशर जो है वो 90 है और हायर साइड जो है 140 है, सो इट गिव मी द हाई पल्स ब्लड प्रेशर रेट. सही ना. अब नॉर्मल को भी चेक कर लेते हैं कि लेट सपोज कि मैं लो साइड जो है वो 75 दे दूं और हाई साइड जो है वो 125 दे दूं. सही ना. सो बाय दिस वे इट्स द एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर. सही ना. ऑल्दो इट्स कंसिडर्ड टू बी द नॉर्मल ब्लड प्रेशर. एक नॉर्मल अगर आप चेक करेंगे तो डॉक्टर इसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं, लेकिन जस्ट फॉर एक आइडियल रीडिंग के लिहाज से ये जो है नॉर्मल की कैटेगरी में हमने लिख दिया है. सही ना. वी आर नॉट फोकसिंग के जो हमने रेंजेस दिए हैं इट मस्ट बी करेक्ट. वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग के हाउ यू कैन गोइंग टू क्रिएट अ रिटर्न फंक्शन. सही ना. सो इसमें कोई क्वेश्चन? जाग रहे हैं, सो रहे हैं? अच्छा, आवाज से तो ऐसा लग रहा है जैसे सो रहे हो. अच्छा. अच्छा, यानी नहीं थोड़े से जागते रहो ताकि मुझे भी पता रहे, यानी पता चला मैं बोले जा रहा हूँ सब सोए पड़े हैं. अच्छा चलो खैर, लाइक इस तरह से यानी मीन्स के यू हैव डन द लैब 8A पोर्शन. सही ना. इसका जो टास्क है यू हैव टू परफॉर्म बाय योर सेल्फ, लेकिन यू डू इट लेटर. मैं पहले 8B जो है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसके बाद फिर दोनों परफॉर्म कर लेना. सही ना. एक साथ जो इसका टास्क है, आई थिंक आई ऑलरेडी written here. If it is not here, then let me open the other document. Yes. अच्छा, अब जो टास्क ए है वो सेम टू सेम वैसे ही टास्क है जैसा आप लोगों ने अभी लैब में देखा है. सही है ना. सो इसमें क्या है कि क्रिएट 2 फंक्शंस in a single program. सही ना. So make sure you have to make these 2 programs into a single program, not a separate program. सही ना. सिंगल प्रोग्राम एक तो चले मैं अभी वो आपसे पूछ लेता हूँ कि क्या आप ये प्रोग्राम एक जो अभी 2 अलग अलग प्रोग्राम बनाए क्या उसको एक में मर्ज कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद जो इसमें चीज़ें बनानी है वो कुछ ये कि रिटर्न फंक्शंस ऑफ BMI. सही ना. रिटर्न 2 फंक्शंस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे. चलिए मैं इसको सेट कर लेता हूँ. मेनी मीन्स के आपने जो BMI का प्रोग्राम बनाया था. सही ना. उसमें BMI इफ एल्स की जो उसमें प्रैक्टिस की थी. सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम इनटू द रिटर्न फंक्शन. नाउ यू हैव टू क्रिएट अ फंक्शन. सही है ना. BMI का फंक्शन बनाना है. BMI के फंक्शन कैसे बनेगा, डेफिनेटली इसमें हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे
कि यू हैव टू यूज अ लाइक रिटर्न टाइप फ्लोट, ठीक है, अगर रिटर्न की बात आ रही है फ्लोट आएगा यहाँ पे। वाई? बिकॉज इन द BMI वी आर गेटिंग द आउटपुट इनटू द डेसिमल वैल्यू, सही ना। इधर यू कैन गिव द फंक्शन नेम BMI, आपने BMI में फंक्शन का नाम दे दिया, सही है। आप हाइट लेंगे, फ्लोट में लेंगे, क्योंकि जो इसमें मल्टीप्लाई वो डिवाइड भी हो रहा है, सही है ना। तो लेट सपोज आपने ये मीटर में हाइट ले ली और फ्लोट kg ले लिया, या इट्स अप टू यू कि अगर आप उसको इजी वे में और मॉडिफाई कर सकते हैं कि मीन्स के आप ले लें फीट और फ्लोट इंचेस, यानी मीन्स कि आपने क्या किया, हाइट फीट पे ली है, फीट एंड इंचेस में ली है, और वेट जो है वो आपने किलोग्राम में लिया। तो इस तरह से यानी मीन्स कि ये आपका प्रोटोटाइप जो है वो बनेगा, सही ना। ये प्रोटोटाइप है आपका। इट्स अप टू यू वॉट एवर द पैरामीटर, इंचेस में है, पाउंड में वेट है, किलोग्राम में वेट है, तो आपने इसमें इस तरह से इसको सेट करना है। वंस यू हैव टेक द डेटा एज इनपुट, डेटा इनपुट ले लिया, तो फंक्शन डेफिनेशन में आपने फार्मूला लगाना है, सही ना। सिर्फ एक के ऊपर लगाना है, कोई मैट्रिक ले लें या स्टैंडर्ड फार्मूला ले लें, दोनों को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, सिर्फ एक फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना है। तो उस फार्मूले की जो रीडिंग, जो डेटा आएगा, सही ना, उसको रिटर्न करा देना है इन द मेन फंक्शन, और जब मेन फंक्शन में वापस आ जाएगा तो इफ एल्स की कंडीशंस लगा के आपने इसका आउटपुट बता देना है कि अंडर वेट, ओवर वेट, या जो भी कंडीशन आ रही है, ठीक है। इस तरह से परफॉर्म करना है। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टास्क इज क्रिएट अ नॉन रिटर्न फंक्शन। नॉन रिटर्न का मतलब कि एक वाइड फंक्शन बनाना है जिसमें आपने ऑक्सीजन सेचुरेशन का बताना है, ठीक है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं वैसे तो कंप्यूटर के अपने राउटर के पास ही बैठा हूँ, तो वैसे ये नहीं ये होगा कि इन केस ऑफ अगर प्रोग्राम जो ये जो है लैब जो रिकॉर्ड भी हो रही है, तो रिकॉर्डिंग के अंदर आई होप कि द साउंड विल बी मच बेटर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ऊंचा बोल लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि साउंड जो है वो सही आ जाए। कुछ ऑप्शंस इसमें देख लेता हूँ माइक के। सेटिंग्स तो सही है, अब देखें आवाज़ कुछ बेहतर हो रही है, नहीं हुई? अच्छा, चलें, इन केस अगर आपको आवाज़ सही ना आ रही हो ना, तो डेफिनेटली रिकॉर्डिंग के अंदर ना आवाज़ सही होगी, तो उसमें आप दोबारा से सुन लीजिएगा, सही है। यहाँ पे जो आपका टास्क है, तो उसमें ये करना है आपने कि ऑक्सीजन सेचुरेशन मालूम करना है। व्हाट इज़ द ऑक्सीजन सेचुरेशन? बेसिकली जो SpO2 होता है, सही ना। उसमें आपके पास ऑक्सीमीटर होता है, एक छोटी सी डिवाइस, सही है, देखी हुई होगी आपने अक्सर, ऑक्सीमीटर। ये शायद सर, हाँ ये देखें, ये डिवाइस है ना, ये ऑक्सीमीटर, जिसमें आप फिंगर रखे इसके थ्रू पल्स रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन पता करते हैं, सही ना। ऑक्सीजन सेचुरेशन बेसिकली ये होती है कि जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल होता है, यानी सिंपल ये कह लें कि ऑक्सीजन लेवल इन योर ब्लड, तो वो मालूम होता है कि कितना ऑक्सीजन लेवल आपके ब्लड में मौजूद है, सही ना। हीमोग्लोबिन के थ्रू उसको चेक किया जाता है। तो it will be the ranges has been given in your tasks ke if let's suppose ke if the and it is measured in the percentage, there is a formula, so we are not going towards the more side, more towards the instrumentation side, just for making the software of about the oxygen saturation. If the percentage is between 95 to 100,
इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन, यानी मीन्स के ब्लड में काफ़ी इनफ ऑक्सीजन मौजूद है. In case if the oxygen saturation is between 90 to 94% is considered to be below normal, and for that purpose the oxygen external oxygens will be required कि इसमें oxygen required हो जाती है, सही ना. लेकिन in case के if it is less than, then definitely the ventilator will be required, सही ना. So a normal person cannot be breathe normally or the oxygen level is decreasing in the body. So ऑक्सीजन जो होती है वो डिक्रीज नहीं होनी चाहिए बॉडी में, अदरवाइज देयर विल बी द सीरियस कंडीशन विल बी अकर्ड, स्पेशली द brain can be damaged. So by this way the oxygen saturation is the most important like the vital sign in the patient monitor and the monitoring the human. तो ये कुछ पॉसिबल रेंजेस मैंने लिखी हैं, सही ना, यानी मीन्स एक जनरल रेंजेस हैं कि 95 प्लस हो तो उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं, 90 से 94 के दरमियान का मतलब ये है कि ऑक्सीजन लेवल कम है, तो और फिर उसको बढ़ाने के लिए फिर हम एक्सटर्नल ऑक्सीजन पेशेंट के लगा देते हैं, ठीक है. इसमें यानी मीन्स के वेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सम टाइम डेफिनेटली डिपेंड अपॉन द कंडीशन, तो ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इट्स नॉर्मली कवर्ड बाय द ऑक्सीजन एक्सटर्नल ऑक्सीजन. इफ इट इज less than 90, then it going to damage the brain, so that's why the external ventilator will be required. So just you can put the three ranges. Any question regarding this particular task? कर लेंगे, परफॉर्म कर लेंगे. ओके सही है. अच्छा फिर अब मैं उस पे आ रहा हूँ लैब 8B के ऊपर, सही है ना. Lab 8B is again related to the functions because the topic of the function is quite huge, so it is divided into the two portions, सही है. So in this particular lab we are going to study or see the difference between the call by value function and call by reference function, सही ना. कॉल बाय वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट वही है जो हम लोगों ने ऊपर जो नॉन रिटर्न फंक्शंस या रिटर्न फंक्शंस देखा था कि उसमें जो वैल्यूज जो हैं वो पास ऑन हो जाती हैं टुवर्ड्स द फंक्शन डेफिनेशन, से ही ना. लेट सपोज एक्स की वैल्यू अगर 5 की ली है, वाई की वैल्यू 3 ली है और फंक्शन को आपने एक्स एंड जी से कॉल किया, तो दे आर पासिंग 5 हेयर एंड 3 हेयर एंड इट गोज टुवर्ड्स देयर फंक्शन डेफिनेशन, सही ना. तो इस तरह से वैल्यूज जो होती है वो पास ऑन हो रही होती हैं. लेकिन जो कॉल बाय वैल्यू के अंदर एक और चीज़ ये भी होती है कि अगर हम वेरिएबल्स चेंज कर दें उसमें फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, तो इट डजेंट मैटर. आप वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे जब इनिशियल वैल्यूज आपने ये डिफाइन की हैं, उसके अंदर जब आप फंक्शन डेफिनेशन को कॉल करें तो वहाँ पे आप डिफरेंट वेरिएबल्स ले लें, तो इट डजेंट मेक अ डिफरेंस, सही ना. कॉल बाय रेफरेंस है, उसका मैं आपको दे दूंगा. रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल हो रही होती है. let comes towards the like the coding side. I already created a code in the here, सही है. तो इसमें ये बेसिकली रेफरेंस का कोड है, सही है ना. तो इसको मैं कॉपी करता हूँ कोड को. इसमें देखें कि void swap int n1 and n2, सही है. इसका ऑब्जेक्ट मैं पहले कॉपी कर लेता हूं ताकि आसानी हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं. राइट द स्वैपिंग फंक्शन बाय कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस मेथड. स्वैपिंग का मतलब वही कि एक वेरिएबल की वैल्यू सेकंड में और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फर्स्ट में मूव ऑन करना है, सही है.
यहाँ पे यू कैन चेक द फंक्शन प्रोटोटाइप जो मैंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें जो पैरामीटर्स हैं, द वैल्यूज ऑफ द नेम ऑफ द पैरामीटर इज n1 एंड n2, सही है। here the variables that has been used in function calling is v1 and v2, and then again in the function definition it is n1 and n2. so what is going on here के दो वैल्यूज हमने यूजर से इनपुट लेनी है, सही ना, और नॉन रिटर्न टाइप है, सही ना। you have taken the two values in input in v1 and v2 वेरिएबल, सही ना। v1 and v2 में आपने इनपुट लिया, उसके बाद ये वैल्यूज जो हैं v1 की जो वैल्यू होगी वो n1 के पास चली जाएगी, v2 की जो वैल्यू होगी वो n2 के पास चली जाएगी, सही ना। तो इस तरह से ये होगा कि v1 के पास अपनी वैल्यू एज इट इज मौजूद है, सही है, और n1 की वैल्यू जो है वो v1 के पास अभी गई है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, स्वैपिंग परफॉर्म की है, सही ना। स्वैपिंग में क्या है कि बेसिकली एक हमने टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट किया, क्योंकि हमें वैल्यू को मूव ऑन करना था। n1 की जो वैल्यू होगी उसको टेम्परेरी वेरिएबल में मूव कर दिया, n2 की वैल्यू को n1 पे ओवरराइड करवा दिया, या n1 के पास n2 की वैल्यू आ गई है, और टेम्परेरी तौर पे हमने n1 की वैल्यू एक टेम्प के वेरिएबल में सेव की हुई थी, वो वैल्यू वापस n2 में मूव ऑन कर दी है। तो यहाँ पे यू कैन सी द टू सी आउट स्टेटमेंट्स के सी आउट इन मेन में वैल्यूज क्या हैं और स्वैप में वैल्यूज क्या हैं, सही ना। सो यू मस्ट सी दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड मस्ट अंडरस्टैंड कि इसका आउटपुट कैसे जनरेट हो रहा है। लेट मी कॉपी दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट फ्रॉम हियर टू हियर एज वेल, कि मैं 3 सी आउट की स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ। ये लिखने का मकसद मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्यों मैं इस तरह से परफॉर्म कर रहा हूँ। सो दिस इज माई पर्टिकुलर program. Let me compile and run this particular program. इसको साइड बाय साइड में समझाता जाऊंगा ताकि ना इस तरह से ये प्रोग्राम जो है आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, सही है। right now it is asking input 2 numbers, सही ना। so this is the cout statement that has been executing at that particular moment, और यहाँ पे लिखा हुआ है v1. so my first input is going like I am going to enter the 10 which is going the input as a v1 variable, सही है, और सेकंड मैं लिख रहा हूँ 20, फिर मैंने लिख दिया सेकंड 20, और फिर मैंने एंटर का बटन प्रेस कर दिया, सही है। तो उसके बाद आप ये देखें कि सी आउट इन मेन, ये जो पहला मेन में है, तो बता रहा है v1 की वैल्यू जो थी वो 10 है, v2 की वैल्यू जो है वो 20 है, सही ना, दैट्स इट। उसके बाद फिर क्या हुआ कि स्वैप का फंक्शन कॉल हुआ। जब स्वैप का फंक्शन कॉल हुआ तो प्रोग्राम डायरेक्ट नीचे फंक्शन डेफिनेशन में आ जाता है, इररिस्पेक्ट के उसके नीचे एक और सी आउट की डेफिनेशन लिखी, वो सी आउट की स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो एग्जीक्यूट पहले नहीं करती, सही ना। तो इसमें जो सीक्वेंस है कि कंपाइलर प्रोग्राम को इस तरह से रीड कर रहा है कि लेट सपोज के स्टार्टिंग फ्रॉम लाइन नंबर 8, देन लाइन नंबर 9, 10, 11, 12 को स्किप कर दें, 13, फिर 15 के बाद प्रोग्राम डायरेक्ट जंप कर जाता है टुवर्ड्स लाइन नंबर 21, सही ना। इट कैन नॉट रीड दिस लाइन, इट विल बी रीड once the function definition has been complete. So in the function, when the function has been called, the value of v1 which is 10 is passed on towards n1, 20 pass on towards n2, सही ना। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने वैल्यूज को स्वैप कर दिया। जब वैल्यूज को हमने स्वैप कर दिया तो इट मीन्स कि जब n1 की जो वैल्यू है इट बिकम्स 20 और n2 की जो वैल्यू है वो 10 हो गई। once it is done, program comes back and again here it is written cout in main, सही ना। इन मेन वाला ये वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है, और v1 की वैल्यू अपनी जगह पे 10 मौजूद है और v2 की वैल्यू 20 मौजूद है। सो this program is showing this is a call by value program in which if you change the variable it doesn't affect in your program, सही है। और इसका एक और चीज़ के जो मेन के अंदर जो वेरिएबल्स की वैल्यू है, फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू रिमेन द सेम, द सेकंड वेरिएबल वैल्यू रिमेन द सेम, सही ना। वैल्यूज आर ऑलवेज रिमेन द सेम, सही ना। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर लैब, सही ना। फिर इसमें एक और मैं मॉडिफिकेशन कुछ तरह से करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपने n1 लिखा हुआ है, सही है, यहाँ पे v1 लिखा हुआ है,
यहाँ पे मैं करता हूँ A1 ले लेता हूँ. आई एम गोइंग टू टेक A1. If I'm going to take A1 in the function definition, then definitely I have to change the variable here as well. मैं variables के नाम यहाँ पे change कर दूंगा, यानी वो variables के नाम लिखे जाएंगे यहाँ पे जो function parameter में आपने define किए. अब देखिए हमारे पास हर तरह से variable different हैं. यहाँ पे N1 N2 हैं, मेन के अंदर V1 V2 हैं और function definition में A1 A2 हैं. मेरे प्रोग्राम पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी जो आउट. अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं सी आउट लिख रहा हूँ इन स्वैप, तो यहाँ पे N1 ही लिखा हुआ था, सही ना. तो इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, यानी मीन्स के थ्रू आउट द फंक्शन डेफिनेशन आई हैव टू यूज A1 और A2 वेरिएबल, सही ना. अगेन आई एम गोइंग टू रन एंड कंपाइल. सो 5 and 50. So I got the same output, यानी मीन्स के मेन के अंदर 5 और 10 ही है मेरी वेरिएबल्स की वैल्यूज, सिर्फ स्वैप के अंदर वो वैल्यूज आगे पीछे हो गई हैं, सही है. तो इट डजंट अफेक्ट कि आपने वेरिएबल क्या लिए हैं. लेकिन डेफिनेटली इस प्रोग्राम में अगर आपने देखें 6 यूनिक वेरिएबल्स लिए हैं, सही ना. तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी के अंदर वो 6 स्पेसेस, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 24 बाइट्स जो हैं वो रिजर्व कर लेगा प्रोग्राम. 24 बाइट्स, क्योंकि इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में. तो आपने चूंकि 6 वेरिएबल्स क्या कहते हैं सेपरेट डिफाइन किए हैं, तो इट टेक्स मोर स्पेस, सही ना. अगर आप 2 वेरिएबल्स लेते हैं N1 एंड N2 लेते हैं पूरे प्रोग्राम में, सही ना, तो उससे क्या होता है कि आपके 8 बाइट्स इन द मेमोरी स्पेस लेता है, सही ना. तो if you are taking different variables, it takes the program sizes larger, सही ना. तो this is the only thing difference between them. लेकिन sometimes we have programs in which we have to require the separate variables, सही ना. separate variables का ये फायदा होगा कि ओरिजिनल वेरिएबल में जो वैल्यू आपने डिफाइन की है इट रिमेन द सेम, सही है ना. और अगर आपने डिफरेंट वेरिएबल्स में वो डिफरेंट वेरिएबल्स में रिमेन द सेम, एंड if you are using just 2 variables then the values has been updated, सही है ना. तो इस तरह से this is a major difference. अब आता हूँ मैं टुवर्ड्स जो रेफरेंस फंक्शन था, सही ना. रेफरेंस फंक्शन में इस प्रोग्राम, अब यही प्रोग्राम है, मैं कुछ इसी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि इट विल बी क्वाइट ईजियर, सही ना. So in the reference program, let me change the variable again towards here N1 N2 कर देता हूँ ना. इस प्रोग्राम को ऑल बाय रेफरेंस में अगर कन्वर्ट करना हो तो आप सिर्फ ये करेंगे, जो प्रोटोटाइप है इसके आगे एड्रेस ऑपरेटर लगा देंगे, और जो चीज़ आपने फंक्शन प्रोटोटाइप में की होती है वही चीज़ आपने फंक्शन डेफिनेशन में करनी है, like this way. So now our complete program is converted into the call by reference function, सही ना. ये अब ये call by reference में convert हो गया है, सही है. अब आप इसमें ये देखिएगा कि when the values of swap of V1 is passed on towards the N1, so it means they are mapping to each other. They are now both variables work as a same variable, सही ना. कॉल बाय वैल्यू के अंदर N1 इज अ सेपरेट वेरिएबल था, सही ना. ये एंड ऑपरेटर लगाने से आपने इसको और इसको आपस में मैप कर दिया है, सही ना. सिमिलरली V2 इज मैपिंग विद N2. नाउ यू कैन सी द आउटपुट, सही ना. अब जो आउटपुट आपके पास आएगा इट विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू द कॉल बाय वैल्यू आउटपुट, सही ना. द फर्स्ट इनपुट इज लाइक सपोज मैंने 10 ले लिया, सेकंड इनपुट मैंने 20 ले लिया, जो कि मैंने अपने पहले प्रोग्राम में भी लिया था, सही ना. So you can see, okay, once you have taken the input from the user and it's 10 and 20, so it means the value of V1 is 10, value of V2 is 20, सही ना. So उसके बाद फिर स्वैप का जो फंक्शन कॉल आउट हुआ
तो V1 की जो वैल्यू 10 थी वो यहाँ पे चली गई, V2 की वैल्यू जो थी 20 वो यहाँ पे मूव ऑन हो गई। फिर यहाँ पे जब स्वैपिंग परफॉर्म होना शुरू हुआ, यानी मीन्स के 10 की वैल्यू आपने 10 में मूव कर दी, N2 के पास 20 था, 20 को आपने N1 को दे दिया, सही ना। 20 जब आप N1 को दे दिया तो N1 के पास अब 20 की वैल्यू आ गई है। ये 20 की वैल्यू जब इसके पास आ गई और टेम्परेरी के पास जो 10 था वो N2 के पास चला गया, तो यहाँ पे 10 हो गया। So once the value is updated at N1 level, सही ना, N1 की वैल्यू 20 हो गई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 20 हो गई, और दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द V1, सही ना, ये रेफरेंस वेरिएबल था। तो इससे क्या हुआ, जब यहाँ पे वैल्यू 20 हुई तो उसने इस वैल्यू को भी अपडेट कर दिया, V1 की वैल्यू को भी अपडेट कर दिया। सिमिलरली जब N2 की वैल्यू अपडेट हुई तो उसने V2 की वैल्यू को भी अपडेट कर दिया। तो यू कैन सी इन सी आउट इन स्वैप N1 20 प्रिंट हो रहा है और N2 जो है वो 10 प्रिंट हो रहा है, सही ना। वन इज प्रिंटेड, यहाँ तक कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस दोनों सेम है, सही ना। जब प्रोग्राम दोबारा ऊपर जाएगा और आखिरी की सी आउट की स्टेटमेंट अब ये वाली जो एग्जीक्यूट कर रहा है V1 की, सो V1 की वैल्यू जो है वो कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू अपडेट हो चुकी है। तो इस वजह से यहाँ पे इन मेन द वैल्यू ऑफ V1 इज 20 is printing and then 10 is printing, सही ना। लास्ट टाइम कॉल बाय वैल्यू के अंदर ये था कि यहाँ पे आपके पास 10 आ रहा था, यहाँ पे 20 आ रहा था। अब यानी मीन्स के जितनी भी वैल्यूज आफ्टर दिस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल के बाद जो भी आप V1 V2 की वैल्यू यूज करेंगे, इट विल बी अपडेटेड वैल्यू, यानी मीन्स के वो वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस फंक्शंस। इज दिस क्लियर? जी क्लास कुछ बताएं। जुरेस, ओके। अब जो इसका टास्क है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, सही ना, इसका टास्क थोड़ा सा ट्रिकी है। सो लेट्स सी के कितने लोग कर पाते हैं, सही ना। इट इज नॉट लाइक द वेरी लेंदी कोड, बट इट्स जस्ट लाइक द लॉजिकल थिंग, सही है ना। सो काइंडली अपने ज़रा माइंड को हाजिर रखें, और इफ़ यू वांट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, सही ना। सो वी आर रीच एट लैब नंबर 8 एट द मोमेंट, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ एंड डोंट आस्क मी। इफ़ यू वांट यू कैन आस्क मी राइट नाउ, जो भी क्वेश्चन है अभी पूछिएगा मुझसे, उसके बाद फिर मैं नहीं बताऊंगा कि इसको कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। जो टास्क उसका तो मैं समझता हूँ कि टास्क 8A जो है इट विल बी ईजियर, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, सही ना। In the task 8B, सही ना, what you have to do, take 3 numbers as input, सही ना, 3 नंबर आपने यूजर से इनपुट लेने, sort them in descending order, सही ना, sort them in descending order, यानी मीन्स के जो बड़ा नंबर है वो आपने पहले लिख देना है, जो छोटा नंबर है वो आखिर में चला जाएगा। कैसे करना है? बाय दी हेल्प ऑफ इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स की कंडीशन को यूज करते हुए आपने सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है, सही ना। सॉर्टिंग के और भी तरीके हैं, कुछ फंक्शंस बनते हैं, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। राइट नाउ यू हैव टू सॉर्ट देम बाय दी हेल्प ऑफ इफ एल्स कंडीशन। यानी मेरे जितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं कि व्हाट द पैरामीटर दैट यू आर गोइंग टू यूज, सही है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि चूज अ सिंगल वैल्यू and update that particular value by reference method, सही ना। रेफरेंस जो फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस मेथड के जो फंक्शन है उसको यूज करते हुए उस पर्टिकुलर वैल्यू को आपने अपडेट करना है, सही ना। कहने का मकसद ये है, लेट मी एक्सप्लेन हियर के आई एम गोइंग टू टेक 3 वैल्यूज एज इनपुट। लेट सपोज आई हैव टेकन फर्स्ट वैल्यू एज 15, सही है, सेकंड वैल्यू इज 7 एंड द थर्ड वैल्यू इज 100। ये मैंने 3 वैल्यूज यूजर से इनपुट ले ली। वंस आई हैव टेकन दीज 3 वैल्यूज एज इनपुट, तो उसके बाद पहला मेरा जो आउटपुट जो होना चाहिए, जो मेरा प्रिंट होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जी 100, 15 और 7, सही। आप एक लाइन में प्रिंट कर लें विद स्पेसेस, या नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर लें, इट्स अप टू यू, सही ना। तो इस तरह से आपने ये परफॉर्म करना है। ये आपके इनपुट था, IO लिख रहा हूँ, IO फॉर इनपुट, और ये आउटपुट। ये मेरा आउटपुट आया, ये एक आउटपुट आया। सेकंड आउटपुट में क्या है कि जी वो मुझसे पूछे, सही है ना, वो मुझसे पूछे कि
विच वैल्यू यू वांट टू अपडेट इट, यानी मीन्स के लाइक क्वेश्चन करेंगे विच वैल्यू इज रिक्वायर्ड टू अपडेट। अच्छा, अब इसके अंदर लेट सपोज के मैं इनको नंबरिंग दे रहा हूँ अभी फिलहाल इस तरह से। अच्छा, इट्स अप टू यू, या आप पे डिपेंड करता है कि आप नंबर देना चाह रहे हैं या डायरेक्ट वैल्यू को वो कर रहे हैं, यानी मीन्स फोकस कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि आपने ये बताना है कि यार जो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है उसको मुझे अपडेट करना है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 100 की जो वैल्यू है उसको मुझे रिप्लेस करना है, सही ना। तो आप दोनों ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर के लेट सपोज के आपने सबसे पहले ये बताना है कि 100 की जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करना है विद 50, इस तरह से आपने लिख दिया, सही ना। तो उस सूरत में आप मुझे ये आउटपुट दे, यानी अब दोबारा से आउटपुट जनरेट हो इस तरह से, और जो आउटपुट अब आएगा वो आएगा इस फॉर्म में, ठीक है। यानी मीन्स कि आपने क्या किया कि 100 की वैल्यू को 50 से रिप्लेस कर दिया। तो ये प्रोग्राम बनाना है। इस प्रोग्राम के अंदर जो फंक्शन यूज़ हो रहा है वो एक ही फंक्शन यूज़ हो रहा है, कॉल बाय रेफरेंस का फंक्शन यूज़ हो रहा है, सही है। सॉर्ट जो है वो आप खुद से मेन प्रोग्राम में भी कर सकते हैं, सही ना। अगर आप इसको कॉल बाय वैल्यू का फंक्शन बनाना चाहें तो उसके थ्रू भी हो सकता है। आई ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्रोग्राम, सही ना, इसका टास्क मैंने बनाया हुआ है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो कैसे रन कर रहा है, सही ना। इसके अंदर चलें, एक हिंट तो मैं ये दे रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि एक फंक्शन बना दिया दैट्स कॉल्ड द अपडेट, और उसमें पैरामीटर रेफरेंस पैरामीटर है, और मैंने बताया था जो फंक्शन पैरामीटर होता है उसमें वेरिएबल आप लिखें ना लिखें डजंट मैटर, लेकिन जो डेटा टाइप होती है वो लिखना ज़रूरी होती है, और अगर रेफरेंस है तो ये रेफरेंस से साइन लगाना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर 3 रैंडम नंबर, सही ना। तो लेट सपोज आई एम गोइंग टू टेक 45, 99 और 5। अब देखें, एक तो वही कि मैंने ये चीज़ प्रिंट करवा दी कि यू एंटर्ड 45, 99 एंड 5 आफ्टर सॉर्टेड, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जब वैल्यूज जो है सॉर्ट की हैं, तो 99 सबसे पहले आ गया, 45 इधर चला गया, 5 अपनी जगह पे रहा, सही ना। सो दिस थिंग इज गोइंग टू परफॉर्म थ्रू इफ एल्स कंडीशन, सही है। अच्छा, इफ एल्स की कंडीशन जो है आई डोंट थिंक मोर देन 9 कंडीशंस के अंदर हो जाना चाहिए ये काम। अच्छा, फिर लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू टेक वैल्यू 45 ले लेता हूँ, सही है। हाँ, लेट मी चेक अगेन। वेट, अच्छा वेरिएबल में मैंने लिया है। अच्छा, जो वैल्यूज़ मैंने यूज़र से इनपुट ली हैं वो वेरिएबल्स में इस तरह ABC में ली हैं, सही ना। सो हियर आई हैव टू चूज़ द वेरिएबल A हियर, सही है। तो इसमें मैंने A
लिख दिया, यानी ए लिख दें, 1 लिख दें, 2 3 लिख दें, इट्स अप टू यू, सही है। सो 1 यू हैव एंटर द पार्टिकुलर लोकेशन, सही ना, पार्टिकुलर लोकेशन आपने एंटर कर दी। उसके बाद वॉट एवर योर न्यू वैल्यू, सही ना, न्यू वैल्यू लेट सपोज 110 लिखी, सो इट विल बी रिप्लेसिंग the 110 वैल्यू एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट, सही ना। तो फर्स्ट पॉइंट पे जो यूज़र से जो मैंने वैल्यूज़ इनपुट ली थी उसमें मैंने वैल्यूज़ को चेंज कर दिया, सही ना। सो इट्स अप टू यू कि आप इस प्रोग्राम को कैसे डेवलप करते हैं। इसको मैंने ओपन छोड़ा हुआ है आपके एंड के ऊपर। इधर यू आर गोइंग टू चूज़ द वैल्यू, इधर यू आर गोइंग टू चूज़ द लोकेशन, लाइक आप यहाँ पे लिखते हैं 1 और 50, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि लोकेशन 1 के ऊपर जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दिया जाए 50 से, या फिर इसको करेक्टर में भी ले सकते हैं, यानी मीन्स के बजाय 1 2 3 लेने के आप ABC ले लें। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि यू आर गोइंग टू टेक A, सो बाय दिस वे द प्रोग्राम हैज़ बीन मेड अप ऑफ। हो जाएगा प्रोग्राम। Okay, so so this is a lab of today's. If any other question regarding the previous lectures, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? और अच्छा, वंस द टोटल लैब, जब 10 लैब्स कंप्लीट हो जाएंगी ना हमारी, सो यू कैन सेंड मी द लैब फाइल, कंप्लीट 10 लैब फाइल टिल 10, सही ना। अगर आपका कोड सही है, यानी मीन्स लैब 8 का जो आप बनाएंगे टास्क का, सही ना, सो मेक श्योर यू हैव टू राइट द सीडो कोड्स एज वेल, सही ना। सीडो कोड्स आपने लिखने हैं इसके अंदर, जहाँ जहाँ ऑप्शन स्पेसिंग छोड़ी है तो वो कंप्लीट करना है। सो वंस यू हैव कंप्लीटेड द कोड, सो इट विल बी ओके, कीप इट विद योरसेल्फ, सही है। और अगर कोई क्यूरी हो सो यू कैन आस्क मी वाया ईमेल, सही ना, तो ईमेल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह से यानी हमारा ये जो फंक्शंस का जो ये जो है टॉपिक जो है, इट विल बी कंप्लीटेड इन अ थ्योरी एंड अ लैब इन बोथ। अच्छा, फिर लैब मेरी कंप्लीट हो गई है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी। मीनवाइल आई एम गोइंग टू ओपन द अटेंडेंस फॉर्म। अटेंडेंस मार्क कर दिएगा इस फॉर्म के अंदर। और एक और चीज़ के, अब जितनी हमारी जिस लैब्स होती हैं ना आज के दिन, तो फ्रॉम नेक्स्ट लैब, यानी मीन्स के नेक्स्ट मंडे से रेगुलर क्विज भी होगा लैब के अंदर ही, सही ना, क्योंकि थ्योरी के अंदर मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं लैब के अंदर क्विज लूँगा, सही ना। और असाइनमेंट्स भी जो है नेक्स्ट वीक में एक असाइनमेंट भी ना इसी में टीम्स के अंदर अपलोड कर दूँगा। तो मेक श्योर के यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द क्विज, इट विल बी द मार्क क्विज, यानी उसके नंबर होंगे, सही ना। जिस तरह ये अटेंडेंस लेते हैं हम लोग इन द वे ऑफ फॉर्म, तो इसी वे में क्विज भी कंडक्ट करेंगे, सही ना। सो दोज हु हैव सम इश्यूज रिलेटेड टू दिस, सो मेक श्योर यू कैन रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर इशू, सही ना, कि आपके पास ये फॉर्म खुलना चाहिए जिनके पास अगर नहीं खुल रहा था। तो ये इस तरह का इसी फॉर्म में ही आपका एमसीक्यूज बेस जो होगा वो क्विज में कंडक्ट करूँगा। तो नेक्स्ट जो मंडे आएगा तो उसको जो क्विज होगा वो लूप्स और इफ से रिलेटेड होगा, सही है ना, यानी मीन्स उसमें फंक्शंस का नहीं पूछूंगा, लूप और इफ से रिलेटेड क्विज होगा, तो काइंडली स्टडी इट। ओके, नेक्स्ट वीक लूंगा क्विज, मंडे को, हाँ। क्योंकि जैसे हमारे पास लैब में ना टाइम ज़्यादा होता है, यानी लैब में तकरीबन हमारे पास टाइम 8:50 टू 11:20 तक का हमारे पास लैब का टाइम है ना। तो इसमें यूजुअली जो लैब होती है वो तकरीबन 1.5 आवर में ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, सही ना। लैब में इतना टाइम नहीं लगता, तो हमारे पास जो टाइम, जब वंस द लैब हैज़ बीन डन, सो यू हैव टू परफॉर्म द क्विज, सही ना। जो क्विज देंगे तो उसी के अंदर ही अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। मुझे क्या चीज़ रिपीट कर दूं? क्विज में जो सवाल होंगे वो डिसीजन और लूप से रिलेटेड होंगे।
सो मेक श्योर, और उसमें ना टाइम एक लिमिटेड होगा, सो यू मस्ट नो द आंसर ऑफ द क्विज क्विकली, क्योंकि उसमें टाइम वो टाइमर लगा हुआ होगा, तो यू डू नॉट हैव मच टाइम। सो लेट सपोज के जो क्विज का सवाल होगा, मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि वो किस तरह का सवाल आ सकता है। लाइक अब इसके डेफिनेटली मल्टीपल आंसर्स मैंने मेंशन किए हुए होंगे उसमें, 4 ऑप्शंस में, तो उसमें से आपने आंसर चूज करना होगा। तो डेफिनेटली आंसर वो भी आप चूज कर पाएंगे जब आप इसको अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे इस पर्टिकुलर कोड को, सही है ना। तो जब आप इस कोड को कैलकुलेट कर लेंगे तो यू नो द आंसर, सही ना। सो यू मस्ट हाउ यू कैन कैलकुलेट, लाइक द इनिशियल वैल्यू ऑफ आई इज 5, सही है। 5 इज लेस देन 20, कंडीशन इज ट्रू। एंड का ऑपरेटर है, इसका मतलब है दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 30, सही ना। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, तो कंडीशन इज बिकम फॉल्स। सो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस सूरत में जो ऑप्शंस होंगे उसमें लिखा हुआ होगा नो आउटपुट, सही ना। सो यू हैव टू चूज नो आउटपुट। इसका आंसर जो होगा नो आउटपुट के अंदर आएगा, सही है। फिर डेफिनेटली अगर इसके अंदर वैल्यूज को मैं कुछ मॉडिफाई कर देता हूँ इस तरह से, लाइक यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, ठीक है। तो अब इसको आउटपुट जो है, सही है ना, यानी मीन्स के 5 इज लेस देन 20, कंडीशन इज ट्रू। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज ट्रू। तो उस सूरत में जो पहला सी आउट जो आपका प्रिंट होगा तो वो 6 आ जाएगा। पहला आउटपुट 6 जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस पहले हो रहा है, यानी मीन्स के आई में इंक्रीमेंट पहले हो रहा है और आई बाद में प्रिंट हो रहा है। तो इनिशियल वैल्यू 5 है, 5 में इंक्रीमेंट हो गया तो इट विल बी प्रिंट 6, सही ना। कंडीशन ट्रू थी, प्रोग्राम दोबारा ऊपर जाएगा और लिखा हुआ है कि 6 इज लेस देन 20, कंडीशन इज ट्रू। 6 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन इज ट्रू। दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ये 7 भी प्रिंट करेगा और ये लाइक 20 तक वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा। वंस इट इज प्रिंटेड 20, तो उसके बाद जब वैल्यू जो 21 हो जाएगी, सही है ना, तो 20 हो गई, सही ना। 20 के ऊपर ये आगे जाएगा, डेफिनेटली 21 को भी प्रिंट करेगा। 21 प्रिंट हो गया, तो 21 के बाद जब 21 इज लेस देन 20, कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, आगे हमें रीड करने की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि अगर जो ऑप्शन मैंने दिए हुए होंगे तो उसमें 6 से लेकर 21 तक अगर मैंने ऑप्शन दिया हुआ है तो डेट विल बी द करेक्ट वन। इज दैट क्लियर? ओके। सो यानी मीन्स के एक क्विज को अटेम्प्ट करने में मैक्सिमम आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम होगा, सही है ना। तो मेक श्योर यू हैव टू अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर कर रखिएगा कि क्या पॉसिबल आउटपुट आ सकते हैं। जब इस तरह के सवालात आते हैं तो इसमें सिर्फ आपको ज़्यादा जो ये कंडीशंस लिखी हुई होती हैं और जो इनिशियल कंडीशन लिखी हुई होती है, इसको देखते हुए आपने सिर्फ पहले वैल्यू को मेजर करना होता है कि व्हाट इज विल बी द फर्स्ट वैल्यू एंड व्हाट विल बी द लास्ट वैल्यू। तो उस तरह से एमसीक्यूज के अंदर आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू राइट वन दिस लाइक ऑप्शन, द सेकंड ऑप्शन इज अबाउट, इस तरह से होगा कि 5 6 7 और 20। तो
तो जब ऑप्शंस आपके पास इस तरह से आएंगे तो अब देखने में तो कुछ इसी तरह लग रहा है कि 5 से स्टार्ट हो रहा है 20 तक जा रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है. सो मेक श्योर यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट आउटपुट एंड द लास्ट आउटपुट, सो इट विल हेल्प यू टू नो कि विच वन इज द करेक्ट आंसर. और सिमिलरली इसके अंदर एक और चीज मैं ये करूंगा कि हिंट दे रहा हूँ अभी से ही, ताकि आप लोग अपनी ना प्रैक्टिस अच्छी रखें. आमतौर पे जो इसके ना सर्टिफिकेट के एग्जाम्स भी होते हैं प्रोग्रामिंग के ना, यानी C++ की सर्टिफिकेशन कोर्स भी आप कर सकते हैं. जो सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं उसमें भी इसी तरह के सवाल होते हैं. जब इस तरह के जब वो इसकी सर्टिफिकेशन के एग्जाम होते हैं, तो मेक श्योर यू डू नॉट हैव द कंपाइलर. आपके पास कंपाइलर नहीं होता, यानी किसी किस्म का कंपाइलर नहीं होता. आपने अपने माइंड में ही इसको कैलकुलेट करके उसका सही आंसर बताना पड़ता है. सो व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू डू नॉट अलाउ टू यूज द कंपाइलर. सही ना, कंपाइलर में आपने कॉपी पेस्ट करके इसको रन करके नहीं देखना, इसीलिए क्योंकि और जितनी देर में आप देखेंगे उतनी देर में इसका ना टाइम अप हो जाएगा. तो इसको अपने माइंड के अंदर ही इसको आपने कैलकुलेट करना है. सही है. अच्छा, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ. चलिए आप मुझे इसका ना आउटपुट खुद बताएं, यानी मीन्स कि अब मैं इसका आउटपुट नहीं बता रहा. वी हैव अ लिटिल बिट टाइम, सो you can tell me the like the output of this particular code के if I is not equals to जी. दो तो टॉपिक बताएं, डिसीजन और लूप्स. मैं उसमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दूंगा. So this is the question. Can you tell me the output? इसका आउटपुट बता सकते हैं? Let me check the attendance. I received 24 responses, so anyone who do not mark in the form, जरा इस चैट विंडो में मुझे इसका आउटपुट लिख के दे दें. ओके, मैं इनको देख लूंगा, इनकी कंदील की मैं who can give the answer? इतना तो टाइम नहीं होगा कोई इसके अंदर के वेट करें. मानूर कोशिश करें एक्सेस फॉर्म को ना क्लिक करने की, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो मेरा क्विज होगा ना इसी फॉर्म पे ही होगा, यानी मींस के ये जो लिंक मैंने दिया हुआ है तो इसी के ऊपर आपने क्लिक करके जाना होगा. तो इन केस कि अगर आप अटेंडेंस को तो मैं मार्क कर दूंगा, लेकिन क्विज को एक्सेस करना होगा, यानी जब आप इस पर क्लिक करें तो खुद ब खुद आपको इस तरह के पेज पे ले आएगा. ठीक है.
तो और फिर आप इसी तरह के सवालात यानी क्वेश्चंस लिखे होंगे, यू कैन चूज द ऑप्शन एंड गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट। कहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से करेगा? 9 तक, यानी कहाँ से 5 से 9 तक प्रिंट करेगा? 6 से 9 तक। लेट मी राइट योर पॉसिबल आंसर। 6 to 9। अच्छा, लेट मी चेक। आपका आंसर जो है गलत है। इट्स रॉन्ग। ट्वेल्व से 21 तक। रॉन्ग, ये भी गलत है। 6 से 21 है ही गलत। नो। आप लोग सारे गैस कर रहे हैं। देखें, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, यू हैव टू थिंक लाइक, लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्टिकुलर थिंग। यानी मीन्स कि अगर मैं आज क्विज ले लेता तो देखें क्या होता आप लोगों का। यानी मेरा पहले प्लान था कि मैं आज क्विज ले लूं, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम दे देता हूं ताकि मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाएं। और दिस सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी कम इन द मिड टर्म, अगर हुए या फाइनल एग्जाम हुए तो उसमें इस तरह के सवालात आएंगे, सही है ना। और इन द एग्जाम यू डू नॉट हैव एनी कैलकुलेटर, नो एनी कंपाइलर, नथिंग, सही है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक के वैल्यूज क्या हैं और उसमें क्या क्या कंडीशंस लगी हुई हैं, सही है ना। सो हियर द इनिशियल वैल्यू इज 5। उसके बाद फिर ये वाइल का लूप है। वाइल का लूप क्या है कि उस वक्त तक रिपीट होता है जब तक आपकी जो लास्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स ना हो। नहीं, फॉल्स नहीं होती, जैसे ही फॉल्स होगा तो स्किप हो जाएगा प्रोग्राम, जब तक ट्रू है तो इट विल बी रिपीटिंग। इफ की कंडीशन जस्ट चेक वन टाइम, अगर तो वो ट्रू है तो वो आउटपुट प्रिंट कर देती है, अगर नहीं है तो वो क्या कहते हैं स्किप कर देती है डेट सेट, सही ना। तो जो उसका बेसिक डेफिनेशन है। So initial value will be the 5. 5 is less than equals to 20, condition is true, and 5 is greater than equals to 0, condition is true. So it means the condition is true, so it comes at that point, सही ना। if के पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि 5 is not equals to 10, condition is true। यहाँ पे और गेट मैंने लगाया हुआ है। और गेट में क्या होता है कि इफ एनी सिंगल कंडीशन इज ट्रू, ओवरऑल कंडीशन इज ट्रू। तो इसको पूरा आगे हम देखेंगे नहीं, क्योंकि आगे ऑल्दो इट इज फॉल्स, यानी 5 इज ग्रेटर देन 11, सो द कंडीशन इज फॉल्स बट द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे 6 जो है वो प्रिंट होगा, सही ना। लेट मी मार्क द कॉमा हियर कि इसको सेपरेट करने के लिए कि मेरा अगला आउटपुट क्या आएगा। देन इट विल बी गोज अप again, and it's checked case 6 is less than equals to 20, condition is true। 6 is greater than 0, condition is true। अब condition true है, वापस प्रोग्राम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा 6 is not equals to 10, condition still true। कंडीशन जो है स्टिल ट्रू है, तो उस सूरत में क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू एडिट हो जाएगी और यहाँ पे 7 प्रिंट हो जाएगा, 7 प्रिंट हो जाएगा, 8 प्रिंट हो जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा, सही है, और 10 भी प्रिंट हो जाएगा। वंस इट इज प्रिंटेड 10, सही है। अब यहाँ पे क्या है कि कंडीशन जो होगी ऊपर जाएगी, सही ना, ऊपर गया प्रोग्राम और यहाँ पे दिस 10 इज लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन इज ट्रू, सही है। 10 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे अब जो चेक कर रहा है कि 10 इज नॉट इक्वल टू 10, कंडीशन इज फॉल्स, सही ना। 10 इज ग्रेटर देन
सॉरी 10 इज नॉट इक्वल टू 10, कंडीशन इज फॉल्स। सेकंड कंडीशन को चेक कर रहा है कि 10 इज ग्रेटर देन 11, 10 इज ग्रेटर देन 11, अगेन कंडीशन इज फॉल्स। दोनों सूरतों में कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। उस सूरत में क्या होगा, ये जो पोर्शन है ये स्किप हो जाएगा, ये स्किप होके प्रोग्राम दोबारा ऊपर को चला जाएगा, क्योंकि लूप जो है व्हाइल लूप स्टिल इट इज ट्रू। अब यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है 11 की, 11 is less than 20, condition is true, 11 is greater than 0, condition is true, both condition are true, तो means प्रोग्राम नीचे आएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 11 is not equals to 10, condition is true। पहली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई, तो सेकंड कंडीशन को हमें देखने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो द सेकंड कंडीशन इज फॉल्स। तो इसमें क्या होगा, इसका जो पॉसिबल आउटपुट है वो ये है कि यहाँ पे 11, फिर ये 12 और अब टिल 21 प्रिंट करेगा। तो इट मींस नो सॉरी, यहाँ पे 11 नहीं 12 आएगा। ऐसे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है 11 जो है वो स्किप हो रहा है, 6 से लेकर 21 प्रिंट हो रहा है, इसमें 11 प्रिंट नहीं हो रहा। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सही है, ठीक है। सो मेक श्योर के जब भी कोई इस तरह का यानी मीन्स के वही डिसीजंस एंड लूप से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इसी टाइप के ही होंगे, ठीक है। तो अब अगर लेट सपोज कि मैं 6 से लेकर 21 तक लिख दूं, 6 से लेकर 10 और उसमें डेफिनेटली 11 नहीं लिखा हुआ, 12 एंड ये ऑप्शन दिया हुआ है, सही ना, और इसी तरह कोई और ऑप्शन दिए हैं, सो ओनली दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सो इट डेफिनेटली द रेंज ऑफ दिस वैल्यू इज मच हायर, सही ना। तो इतनी ज्यादा हाई रेंज की वैल्यू नहीं पूछूंगा मैं क्विज में, उतना ही पूछूंगा कि जितना एक 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के अंदर आप आंसर दे सकें, सही ना। यानी इस तरह के सवाल आए होंगे तो उसमें तकरीबन 1 मिनट का टाइम होगा कि एक मिनट के अंदर आप उसको आउटपुट दे दें। कुछ जो जरा बेसिक से सवाल होंगे तो उसमें 30 सेकेंड्स के अंदर आप आंसर दे सकते हैं। अब देखें किसी का भी आंसर जो है मुझे सही नहीं मिला, लाइक हाउ मेनी ऑफ यू, लाइक 28 स्टूडेंट्स हैं आप लोग तकरीबन। तो जुरेज ने कुछ कोशिश की, लेकिन यही है कि बीच में एक वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं हो रही है, तो इस वजह से आंसर जो है उसको करेक्ट नहीं समझा जाएगा। ठीक है, अगर कोई और इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस सो वी कैन एंड द लेक्चर।